آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمے پر مل جائے۔ ذکر خدا اور امام احمد رضا، مصنف مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی، حصہ 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت کا شعر یوں ہے: نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو، مگر سد جرائی داب ہے اپنی شریعت کا۔ اس شعر میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ اور بھائیوں نے سجدہ کیا، لیکن ہمارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کی اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اور یہ واقعہ کئی صحابہ سے مروی ہے اور کئی بار کا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ، یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نے ملک شام میں دیکھا کہ لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، میرا دل چاہا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدہ کروں۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ایسا نہ کرو، اگر میں غیر خدا کو سجدہ کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کریں۔ ابن ماجہ صفحہ 134۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہیرا سے آیا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے حاکم کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے کے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا اس ارادے سے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنا خیال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظاہر کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کی اجازت چاہی۔ فرمایا: کیا تم میری قبر سے گزرو گے تو اس کو سجدہ کرو گے؟ میں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: ہرگز ایسا نہ کرو، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، اس حق کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر رکھا ہے۔ ابو داؤد جلد 1 صفحہ 229، مشکات باب عشرۃ النساء فصل 3 صفحہ 282۔ اس کے علاوہ حدیث شریف کی کتابوں میں 10 بار کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سجدے کی اجازت چاہی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ تو آخر ایسا کیوں ہے کہ حضرت آدم اور حضرت یوسف کو سجدہ کیا جائے لیکن ہمیں اس سے روکا جائے اور ہماری شریعت میں غیر خدا کو سجدہ حرام قرار دیا جائے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ شعر کے دوسرے مصرعے میں اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں: مگر سد جرائی داب ہے اپنی شریعت کا، یعنی اس شریعت میں جو کام کفر و شرک اور حرام ہے وہ تو ہے ہی، ایسے کاموں سے بھی روکا گیا ہے کہ جو کفر و شرک کا راستہ ہموار کرے اور اس کا دروازہ کھولے، یعنی ایسے اسباب و وسائل و جرائی تو روکنا ہماری شریعت کا مجاز ہے کہ جس سے گمراہی کے دروازے کھلیں، اور غیر خدا کو سجدہ کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دھیرے دھیرے اسی کو مسجود اور معبود اور خدا سمجھنے لگے، اور پچھلی امتوں میں ایسا کافی ہوا بھی ہے، جو مسجود تھے وہی معبود بنا لیے گئے، پہلے سجدہ ہوا پھر عبادت، پوجا اور پرستی۔ اس شعر سے ظاہر ہے کہ امام احمد رضا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کے قائل نہ تھے، خواہ وہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی توحید پرستی اور شرک سے بیزاری و دوری وہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام کے لیے شرک کے دروازے کھولے جائیں، اور انہوں نے غیر خدا کے لیے سجدہ حرام ہونے کے ثبوت میں ایک پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ لتخیر سجود التحیہ۔ اس کتاب میں انہوں نے سجدے کی 2 قسمیں بیان کی ہے۔ پہلا، کسی کو خدا اور معبود جان کر اس کے لیے پیشانی زمین پر رکھنا، یعنی اس کو سجدہ کرنا، یہ غیر خدا کے لیے شرک ہے، ایسا کرنے والا کافر و مشرک ہے، مسلمان نہیں۔ خدا کا بندہ جان کر صرف اس کا احترام اور تعظیم کرنے کے لیے اس کو سجدہ کرنا، یہ کفر تو نہیں لیکن حرام ضرور ہے۔ عام طور پر بادشاہوں کو اس طرح کا سجدہ کرنے کا رواج رہا ہے، کچھ ان پڑھ نام نہاد صوفیوں نے بھی اس کو جائز رکھا
और इसका रिवाज बनाया। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस तसनीफ में कई कुरान की आयतों और 40 रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों और 110 अक़वाले अइम्मा और फिक़ही इबारतों के जरिए खूब अच्छी तरह साबित व वाज़ेह फरमाया कि गैर खुदा के लिए सजदे की मजहब इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी मुदल्ला किताब तहरीर फरमाई कि मुखालिफीन चुप्पी साध गए, उनके दांत खट्टे कर दिए और मुवाफिकीन में से अगर किसी को कोई शुबह था वह दूर हो गया। अकीदा तौहीद की पूरे तौर पर हिफाजत फरमाई, शिर्क और उसकी तरफ लाने वाले हर दरवाजे और हर रास्ते को बिल्कुल बंद फरमा दिया और एक अल्लाह ताला की इबादत पर कायम व दायम रहने के लिए मुसलमान की राहों में जो शैतान की तरफ से रुकावटें पैदा हो सकती थी उनका सद्दे बाब फरमा दिया। और उन्होंने दलाइल देते हुए बड़ी सफाई के साथ यह ऐलान फरमा दिया कि जिसको सजदा कहते हैं यानी किसी के लिए माथा जमीन पर रखना, वह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए जायज है और किसी के लिए नहीं। खास मज़ारात के बारे में वो फरमाते हैं, मज़ारात को सजदा या उनके सामने जमीन चूमना हराम और हद रुकू के बराबर झुकना ममनू है। फतावा रिज़विया जिल्द 22 सफ़ा 474। हैरत की बात यह है कि हुजूर सैयदुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क व मोहब्बत बल्कि पनाफिर रसूल होने के बावजूद वह ऐसे तौहीद परस्त थे कि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी सजदे ताज़ीमी के कायल न थे। वह अपने एक शेर में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व अकीदत और उसके साथ शरीयत की हिफाजत का इजहार यूं फरमाते हैं, पेश नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। वह इश्क व मोहब्बत के माना महबूब की फरमाबरदारी और उसकी बात मानने को समझते थे। वह सजदे के लिए बेकरार जरूर हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मुझको सजदा न करो, लिहाजा वह सर को रोक लेने में ही बेहतरी समझते हैं। वह फरमाते थे, किसी की ताजीम यही है कि जिस काम से वो रोके उसे न किया जाए। अल मलफूज हिस्सा 4 सफ़ा 42। वह किस कदर इस मामले में मोहतात थे, उनकी एहतियात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि वह सजदे को तो हराम कहते ही थे, वह मजारात या बुजुर्गों की चौखट को बोसा देने और चूमने को भी नापसंद फरमाते थे। अगरचे सिर्फ चूमने और बोसा देने को उन्होंने नाजायज व गुनाह नहीं बताया, लेकिन फिर भी एहतियात इसी में बताई कि चंद हाथ के फासले पर खड़े होकर फातिहा पढ़े और चला आए, न चूमे न छुए। यह सब उनकी किताबों में जगह जगह लिखा हुआ है। एक मकाम पर कब्र को चूमने और बोसा देने के बारे में वह लिखते हैं, जमहूर उलमा मकरूह जानते हैं तो इससे एहतियात ही चाहिए। कब्र को हाथ न लगाए न चूमे। फतावा रिज़विया जिल्द 9 सफ़ा 526। इसी किताब के सफ़ा 528 पर फरमाते हैं, मजार को बोसा देना न चाहिए। थोड़ा आगे लिखते हैं, अवाम के लिए मना ही अहवात है। हमारे उलमा तसरीह फरमाते हैं कि मज़ार अकाबीर से कम 4 हाथ के फासले पर खड़ा हो। फिर तकबील की क्या सबील, यानी जब 4 हाथ के फासले पर खड़े होने का हुक्म है तो फिर चूमने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और एक जगह फरमाते हैं, कब्रों का बोसा लेना नहीं चाहिए। फतावा रिज़विया जिल्द 9 सफ़ा 532। अहकाम शरीयत हिस्सा 3 सफ़ा 234 पर भी इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कब्रों मज़ारों को बोसा देने और चूमने छूने से मना फरमाया है। एक मकाम पर और तहरीर फरमाते हैं, मज़ार को न हाथ लगाए न बोसा दे और तवाफ बिल इत्तिफाक नाजायज और सजदा हराम है। फतावा रिज़विया जिल्द 9 सफ़ा 522। तवाफ का मतलब ताजीम के तौर पर इसके इर्द गिर्द फेरे लगाना है। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसको सिर्फ खाने काबा के लिए जायज मानते थे, मज़ारात वगैरह के लिए नाजायज का फतवा देते थे। एक जगह लिखते हैं, मज़ार का तवाफ ताजीम की नीयत से किया जाए नाजायज है। फतावा रिज़विया जिल्द 9 सफ़ा 528। और यह सिर्फ इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अपना नजरिया नहीं बल्कि उनसे पहले की लिखी हुई किताबों में भी यही बताया गया है। फतावा आलमगीरी जो बादशाह इस्लाम हजरत औरंगजेब आलमगीर के जमाने में उस वक्त के तमाम हिंदुस्तानी बड़े बड़े उलमा के मशवरे से लिखी गई थी, उसमें है, फिर खड़े होकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की तरफ मुतवज्जह हो और कब्र अनवर की दीवार को हाथ न लगाए, 3-4 गज के फासले पर खड़ा हो। इसमें ज्यादा हैबत, ताजीम और एहतराम है। फतावा आलमगीर जिल्द 1 सफ़ा
265। इसी आलमगीरी में है न कब्र को छुए न चूमे क्योंकि यह ईसाइयों का तरीका है। फतावा आलमगीरी जिल्द 5 सफ़ा 351। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, खबरदार हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोजे की जाली शरीफ को चूमने या छूने से बचो, यह खिलाफ अदब है, बल्कि 4 हाथ के फासले से ज्यादा करीब न जाओ। फतावा रज़विया जिल्द 10 सफ़ा 765। खुलासा कलाम यह है कि मज़ारात को चूमने और छूने से जो मना किया, इसकी खास वजह यह है कि इसमें अदब ज्यादा है। ज्यादा करीब होने, छूने, चूमने और लिपटने में अदब की कमी बल्कि कभी कभी बेअदबी व बेहुरमती भी हो सकती है। मज़ारात को चूमने से मना करने में एक हिकमत यह भी है कि जिस तरह सजदा करने से शिर्क का दरवाजा खुल सकता है, इसी तरह चूमने बोसा देने से सजदे की शक्ल पैदा होती है। चूमते हुओं को देखने वाले उसे सजदा समझते हैं और इससे सजदे करने का रिवाज पैदा हो सकता है, क्योंकि जाहिल अनपढ़ों की दुनिया में कमी नहीं है। और इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने शेर में फरमा चुके हैं, मगर सद्दे जराई दाब है अपनी शरीयत का, यानी हमारी शरीयत में वो वसाइल व जराई भी ममनू है जिससे बुराइयों के दरवाजे खुले। हाँ, अगर कोई साहिब इल्म किसी मजार को बोसा दे भी तो अवाम के सामने हरगिज ऐसा ना करे। मैं देख रहा हूँ कि जब से मज़ारात को छूने, चूमने और सिजदे करने का रिवाज बढ़ा है, तब से वहाँ हाजिरी देने वालों में गैर मुस्लिमों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल खानकाहों और दरगाहों में उन्हें बज़ाहिर वो देखने को मिल रहा है जो कुछ उनके पूजा स्थलों, मंदिरों और गुरुद्वारों में होता है। मुसलमानों को चाहिए कि वह हरगिज मज़ारात को न सजदा करे, न चूमे, न बोसा दें, ताकि गैर मुस्लिम मुशरिक बुत परस्त किसी भी हैसियत से हमें अपनी तरह न समझ लें और मजहब इस्लाम सूरत, शक्ल और जाहिर में भी हर मजहब से, हर एतबार से अलहदा और अलग थलग रहे और अलग थलग लगे। और मज़ारात, दरगाहों, खानकाहों में गैर मुस्लिमों बुत परस्तों की तादाद का बढ़ जाना खतरे से भी खाली नहीं। यह तादाद अगर बढ़ती रही तो आने वाले वक्त में यह दरगाहें हो सकता है उन्हीं के तसल्लुत और निगरानी में आ जाए और उन पर उन्हीं के कब्जे हो जाएं। और यह भी दूर नहीं कि दरगाहें मंदिरों और गुरुद्वारों की शक्ल इख्तियार कर लें। और अल्लाह गनी है बंदों के अफ़ाल से और उसके महबूब बंदे उसकी सिफात का मजहर हैं। और गैर मुस्लिम जब खानकाहों में आएंगे तो वह वही सब कुछ करेंगे जो वह अपने पूजा स्थलों में करते हैं। और अनपढ़ अवाम मुसलमानों पर उनका रंग चढ़ते देर नहीं लगेगी, क्योंकि शैतान अभी मरा नहीं है और वह हर वक्त इंसान की खात में है। और यह भी देखा जा रहा है कि आजकल काफी खानकाही पीर व मुरीद और पीर परस्ती में हद से आगे बढ़े हुए और पीरों की अकीदत में खुदा और रसूल को भूल जाने वाले मुशरिकों और गैर मुस्लिमों बुत परस्तों से मेल और मैच खाते जा रहे हैं और उनकी शक्ल व सूरत और तौर तरीके, रस्म और रिवाज अपनाते चले जा रहे हैं। भाइयों, बुरा न मानो, इब्लीस बड़ा चालाक है और वह तुम्हारी फिक्र और ताक में है। होशियार और चौकन्ना रहने की जरूरत है। हदीस पाक में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि मेरी उम्मत के कुछ घराने मुशरिकों से मेल न खा जाएं और मेरी उम्मत के कुछ घराने बुत परस्ती न करने लगे। मिशकात किताबुल फित्न फस्ल 2 सफ़ा 465। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे बोलने में जो कुछ लग्जिशें और ख़ताएं हुई उसे माफ़ फरमाए। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिमीन को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन हक पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन।